بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Federal Minister for Education, Rana Tanveer Hussain, Federal Ministers, Advisors, Special Assistants, Lieutenant General Muazzam Ijaz, Rector, NUTEC, Vice Chancellors, Professors, and Shahid Khan, former bureaucrat and a very outstanding human being and a government official. Mr. Zahid Rafiq, Chairman FDHL, dear students, your very respected parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I wouldn't want to speak in English, I would rather stick to Urdu. But let me say at the outset, I am very impressed to visit this wonderful seat of learning, not only by its grandeur or ambience, but outstanding human resource, wonderful teachers and students, very hardworking, and a very disciplined management. خواتین و حضرات، ووکیشنل اسکل ٹریننگ یہ آج کے زمانے کی کنجی ہے ترقی اور خوشحالی کی. تعلیم کسی بھی میدان میں ہو، یقیناً وہ ایک ہنر ہے اور وہ زندگی میں ہمیشہ وہ آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ایک بہت بڑا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنر عطا کیا ہے. لیکن قوموں کو ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے لے جانے کے لیے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ووکیشنل ٹریننگ، اسکل ٹریننگ، یہ کامیابی کی برق رفتاری کے ساتھ اس کی ضمانت ہے. میں آج یہاں پہ آ کے بہت متاثر ہوا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس ادارے کو بہت برق رفتاری سے آگے لے کے جائے گی اور ہزاروں بچے اور بچیاں اسکل ٹریننگ سے فیض یاب ہو کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ خلیجی ممالک میں اور دوسرے ممالک میں پاکستان کا نام روشن کریں گے اور اپنے خاندان کے لیے عزت اور وقار کے ساتھ بریڈ اینڈ بٹر کمانے کا ایک بہت باوقار سلسلہ بنائیں گے. اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر پہلے میں اس ادارے کے حوالے سے حکومت پاکستان اور میاں نواز شریف جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اس کی ابتدا کی، میں ان کو اور متعلقہ وزراء کو، منسٹر پلاننگ، منسٹر ایجوکیشن، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا شاندار ویژن یہ لے کے چلے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا. یہ بات میں آپ کو اس لیے اب بتا رہا ہوں کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ
where we all come from. یہ بات ہے 1997 کی، جب میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے پارٹی قائد نے مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا، تو ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر میں نے فی الفور توجہ دی، اور سلسلہ یہ تھا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ووکیشنل ایک پروگرام تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا، اور سب اپنے اپنے دائرے میں بھانت کی بولیاں بول رہے تھے، اور کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی۔ میں نے پھر ان کو یکجا کرنے کی جب کوشش کی تو جو ہوتا ہے سیاست وہ چل پڑی، قصہ کوتا میں ان تمام اداروں کو ایک چھتری کے نیچے لے کے آیا اللہ کے فضل سے، اور اس کو پھر ہم نے بڑی تیزی سے ٹیفٹا کو ہم نے واٹ واز دا نیم، شاید پنجاب ووکیشنل ٹریننگ PVTC، جی دیٹس رائٹ، اس کو ہم نے نام دیا اور اس کو لے کے آگے چلے۔ اب وسائل ہر کام کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، تو جو زکوٰۃ فنڈز تھے حاجت مندوں کے لیے، حقداروں کے لیے، میں نے اس فنڈ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی، تو علماء جو ہے وہ انہوں نے فتوے تو نہیں دیے، لیکن وہ راستے میں آ گئے کہ جناب یہ تو آپ فنڈز استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ تو اخراجات کا حصہ ہے ان بچوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے جو کہ حقدار ہیں زکوٰۃ فنڈ لینے کے لیے، جو سفید پوش ہیں، انہوں نے اپنے نفقہ اپنے بچوں کے لیے دوائی علاج کا انتظام کرنا چاہیے، تو یہ فنڈ ان کا ہے، یہ ٹریننگ کے لیے تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جو بچے انہی خاندانوں کے جو کہ زکوٰۃ فنڈ لینے کے حقدار ہیں، انہوں نے اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو تعلیم کے لیے تو یہ پیسہ جائز نہیں ہے، باقی چیزوں کے لیے جائز ہے، یہ کہاں کا یہ لاجک ہے؟ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل تک گیا، اور بڑے بڑے لائرز ہم نے ہائر کیے۔ انہوں نے کہا جناب جو اسلامی حوالے سے اگر اونرشپ نہیں ہے تو یہ پیسہ یہ اس تعلیم کے لیے نہیں لگ سکتا۔ اس کا ہم نے حل ڈھونڈا، اونرشپ مراد کہ ان بچوں کے لیے ان کی ملک ہونی چاہیے۔ تو ہم نے پھر وہ جو ادارے قائم کیے، ہم نے جو بیچ وہاں پر آ کے تعلیم سیکھتا تھا ان کو ہم اونرشپ دیتے تھے، ان کی اونرشپ ہوتی تھی۔ جب وہ بیچ فارغ التحصیل ہو جاتا تھا، نیا بیچ، وہ اس کی اونرشپ لیتا تھا۔ اس طرح ہم نے معاملہ حل کیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف، کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایسی باتوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنانا، بلکہ اس کا حل نکالنا ہے تاکہ قوم کے کروڑوں بچے اور بچیاں وہ آگے بڑھیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا۔ یہ 2008 کی بات ہے، جب میں غریب الوطنی سے واپس آیا پاکستان، تو اللہ نے مجھے دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب کیا۔ اس کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے۔ تو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا، اس کے لیے ہم نے 2 ارب روپے سالانہ مختص کیے بجٹ سے، اس میں تاکہ اس کی آمدن سے غریب بچے اور بچیاں جو بہت لائق اور بہت ہی قابل ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں، ان کے ماں باپ کے پاس، کہ وہ ان کو تعلیم کو جاری رکھوا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان 10 سالوں میں 4,50,000 بچے اور بچیاں نہ صرف پنجاب کے بلکہ دوسرے صوبوں کے بھی، صرف میرٹ پر، ایک میرٹ تھا ان کا سٹرینڈ اور دوسرا تھا کہ وسائل نہ ہونا، اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو وظائف دیے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب اس کمپنی کے چیئرمین تھے، اور اس نے پنجاب میں ایک تعلیمی انقلاب پیدا کیا۔ اب آج وہ بچے اور بچیاں پاکستان میں اور دنیا میں اپنا لیاقت کا، محنت کا لوہا منوا رہے ہیں۔
इसी तरीके से हमने दानिश स्कूल बनाए, और मेरा एक सोच थी कि अगर एचएन कॉलेज बन सकता है बड़े बड़े उमरा के लिए और वडेरों के लिए, और एचएन कॉलेज के जो लोहे के दरवाजे हैं वो गरीबों के लिए बंद हैं, तो इससे बड़ी और माशरे में कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकती है। तो हमने दानिश स्कूल का जब आगाज़ किया तो वही जो उमरा थे और बड़े बड़े लैंड लॉर्ड थे, उन्होंने उसकी मुखालफत की कि ये शहबाज शरीफ पैसा ज़ाया कर रहा है, इस एक स्कूल से जितना पैसा लग रहा है ये तो 10 स्कूल बन सकते हैं। मैंने कहा कि एचएन कॉलेज के ऊपर तो कोई कतगन नहीं, लॉरेंस कॉलेज के ऊपर कोई कतगन नहीं, और इस तरह दूसरे जो बड़े बड़े अंग्रेज़ के ज़माने में कॉलेजेस हैं जहाँ पर सिर्फ उमरा के बच्चे जा सकते हैं, अब गरीबों और यतीमों की बारी आई है तो उनको पेट में दर्द है। मैंने कहा मैं परवाह नहीं करूँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में इन दानिश स्कूलों का एक जाल बिछा है, और यकीन करें कि डबल ऑप्शंस वो उस छत के नीचे आए और बड़े बड़े काबिल उस्तादों ने उनको पढ़ाया लिखाया, उन बच्चियों को और बच्चों को। आज कोई ऑक्सफोर्ड से तालीम वापस हासिल करके आ रहा है, कहीं अमेरिका में डिबेटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, और आज वो बड़े फ़ख्र और एतमाद के साथ वो अमीर बच्चों और बच्चियों के साथ वो इस मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि तालीम सबका हक है, ये किसी एक फ़र्द का, ये एक तबके का हक नहीं है, ये सबका हक है। और इन्हीं मामलात के लिए चाहे वो तालीम हो, इलाज हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। और इसी के लिए हज़रत कायद आज़म ने एक अजीम तहरीक चलाई थी और लाखों लोगों ने अपने खून का नजराना पेश किया था। आज 75 साल बाद भी ये तफावत और ये डिस्क्रिमिनेशन जारी है। तब तक कायद का और इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि अमीर और गरीब के दरमियान कम से कम इन मैदानों में कोई तफरीक ना हो। और ये मुमकिन है। मैं आपको दिल की अथाह गहराई से कहता हूँ कि ये मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि 75 साल में जो आदतें पड़ गई हैं उन बुतों को तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम मिलकर यकजहती के साथ और एक इरादे के साथ, मुसम्मम इरादे के साथ अगर हम इस तरफ चल पड़ेंगे तो यकीन करें कि तालीम पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में आम होगी। और ये स्किल डेवलपमेंट जो है ये सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। आज अगर इंडोनेशिया का और पाकिस्तान का जो फॉरेन रेमिटेंस हैं उनमें फ़र्क अगर है तो वो क्या है। पाकिस्तान की जो लेबर, पाकिस्तान के जो उमाल जाते हैं खलीज में और दूसरे ममालिक में, दे आर सेमी स्किल्ड या बिल्कुल वो स्किल्ड नहीं होते। इसलिए हमारी जो बाहर से जो ये हमारे अजीम पाकिस्तानी जो अपनी मेहनत से पैसे भिजवाते हैं वो तकरीबन $30 बिलियन के लगभग है। इंडोनेशिया की जो रेमिटेंस है इससे डबल हैं, इसलिए कि वो हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड लेबर बाहर भिजवाते हैं, टेक्नीशियन भिजवाते हैं, जिससे कि उनकी आमदन दुगनी हो जाती है। अगर यही हमारी भी आमदन दुगनी हो जाए तो हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स $70 अरब की तकरीबन हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 26-27 बिलियन डॉलर्स की हैं। $30 बिलियन हमारा ये बाहर से हमारा अजीम पाकिस्तानी ये भिजवाता है वहाँ से रेमिटेंस। बाकी जो 20-25 बिलियन का गैप है, अगर हम स्किल्ड हुनरमंद लोगों को बाहर भिजवाएंगे, कतर में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में और दूसरे ममालिक में, तो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। मैं आज इस इदारे में खड़े होकर अपने आप को बहुत मेरे लिए एजाज़ है कि इतने अजीम स्टूडेंट्स, टीचर्स के सामने मैं खड़ा हूँ। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी इंतज़ामिया को। और मेरे लायक अभी हमारी हुकूमत को सिर्फ 1 माह रह गया है, लेकिन मेरे लायक कोई भी खिदमत है तो इस मकसद के लिए तमाम वसाइल आपकी खिदमत में निछावर करने को तैयार है। बिल्कुल राना साहब ने
सर्टिफिकेशन की बात की, रान साहब पैसे दें तो सर्टिफिकेशन दुनिया की आपको मिल जाएगी. यू हैव टू प्रोक्योर ए क्वालिटी सर्वेज अराउंड द ग्लोब. दुनिया में, लंदन में, सिंगापुर में, जहाँ पर भी इस तरह के इदारे हैं, उनको आप लें कि वो सर्टिफिकेशन इनके हक में जाएगी. जब ये बाहर जाएंगे या किसी भी इदारे में जाएंगे तो इनके पास वो सर्टिफिकेशन होगी उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो इनकी जो तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, इनको इज़्ज़त भी ज़्यादा मिलेगी. तो फेडरल लेवल पर जो हमने पंजाब में किया था उसको एमुलेट करें उसी को, और MOUs एग्रीमेंट नहीं, उससे आगे जाएं और वहाँ इदारे यहाँ पर आ जाएं. पे देम एंड गेट द सर्विसेज. इसका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा और बाहर की जो कंपनियाँ हैं, बाहर के जो ममालिक हैं, उन सर्टिफिकेट्स को वो खुशदिली से कबूल करेंगे और उसका बहुत इन बच्चों को बेपनाह फ़ायदा होगा. यहाँ पर हमारी बेटी सिदरा गुल तशरीफ़ लाईं और मुमताज़ अली तशरीफ़ लाए चकवाल से. आप देखें कितनी मेहनत की इन बच्चों ने और दूसरे बच्चों ने. मैं समझता हूँ कि इनके वालिदैन इंतहाई लायक तहसीन हैं और उन्होंने जिस तरह अपने इन बच्चों की मुश्किल हालात में इनकी तालीमी अखराजात उनको अपना पूरा किया अपनी रिज़्क़ हलाल की कमाई से. और ये असातिज़ा जिन्होंने इंतहाई ज़ौक़ और शौक़ से इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मैं सब आपको सल्यूट करता हूँ. आप वाकई आप एक अजीम यहाँ पे लेकिन एक चीज़ की कमी यहाँ पर महसूस हुई, आपको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया. ये मुझे समझ नहीं आई कि गार्ड ऑफ ऑनर क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये गार्ड ऑफ ऑनर ये आपके लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है. मुझे तो आपने पहले ही वज़ीर आज़म बनाया, मुझे और क्या चाहिए. लेकिन जिस मुल्क के लिए आप अजीम मेमार हैं, जिस मुल्क को आपके हाथों से आपने बनाना है, असल में गार्ड ऑफ ऑनर के जो मुस्तहिक और उसके लिए आप हैं, उसके लिए इसलिए कि आपके दिलों में कोई खोट नहीं, कोई आप करप्ट प्रैक्टिस को आप दिल से आप उसकी मजम्मत करते हैं. और जब आप किताबें पढ़ते हैं और आप अलूम सीखते हैं तो आप सोचते हैं कि हमारा माशरा इतना करप्ट क्यों है. नौजवान नस्ल से ज़्यादा करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोई और तबका नहीं है जो कि उसको अपना आनन फानन ख़त्म कर दे और अमानत और दयानत के निज़ाम को आगे लेके जाए. लिहाजा मेरी जनरल साहब आपसे गुजारिश है कि आइंदा जब भी कोई इन बच्चों के लिए एक तकरीब हो तो गार्ड ऑफ ऑनर को ज़रूर दीजिएगा. बहरहाल आज चूँकि वो सिपाही नहीं आए इनको सल्यूट करने के लिए, तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपकी अज़मत को और आपकी दयानत और आपकी मेहनत को. मैं आखिर में वो जापानी जो बच्चा जो ज़ुबान बोल रहा था, मुझे जापानी नहीं आती, आपने मुझे मेरे बारे में बड़ी गलत फहमियाँ पैदा कर दी. मैं कोई दुनिया की ज़ुबानों को नहीं जानता, बहुत थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन चूँकि आपने जापानी ज़ुबान में बात की तो उसका जवाब मैं दूंगा. और एक आपको, आप बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं आप. उसमें वहाँ पे जापान में जब आप जाएंगे तो आपको एक चीज़ वहाँ पर नज़र आएगी. वो हर बात पे वो इस तरह झुकते हैं, इस तरह झुकते हैं, इस तरह झुकते हैं. वो उनकी रवायात हैं, बहुत बड़ी. उनके जापान की जो कौम है, जापानी और जर्मन, ऐसी कौमें दुनिया में मैंने और नहीं देखी. बात के पक्के, मेहनत, अमानत और दयानत उनका ओढ़ना बिछाना है. तो जब वो इस तरह अपने झुकते हैं तो वो ताज़ीमन, उसका मतलब ये नहीं कि आप जो बात करें वो मान रहे हैं, बिल्कुल ये ज़रा ज़हन में रहे. और दूसरी बात, उनकी डिसिप्लिन को देखिए आप. मैं एक दफ़ा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी, तो मुझे वो एक फैक्ट्री में लेके गए तो मैंने देखा, देखें ये कौमें इस तरह बनती हैं. मैंने देखा कि आवाज़ आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूँ फिर आवाज़ आए इस तरह. मैं बड़ा हैरान सा हुआ. मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था. जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज़ पड़ी तो मैंने अपने मेज़बान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज़ दिस. तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, ये यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं.
میں نے کہا یہ عجیب پروٹیسٹ ہے، یہ مشینیں بھی چل رہی ہیں. کہتے یہی ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم وقت نہیں ضائع کرتے. یہ مجھے دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مطالبات مان لو مگر ہم کام کو نہیں روکیں گے. اس طرح قومیں بنتی ہیں، اس طرح قومیں آگے ترقی کرتی ہیں. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ ارے گدائی ماستا ہائے دومو، السلام علیکم، پاکستان پائندہ باد.